thought-provoking, and critical analysis about decoloniality. And thank you for stating that how much you hate decoloniality while your whole attire is shouting otherwise today. Anyways, moving towards our next part of today's session, which will be comprised of question answer session, like a dialogue between Dr. Fatma Sajjad, Director CCPS, and our guest speakers. Rather than phrasing it like a versus kind of a contentious debate between the like decolonialism, now this is something I think we should avoid that. What I'm of the opinion is this Aditya Nigam's very interesting book, which I would refer to you, is that thinking across traditions. How we can think across traditions. But then we have to understand what is a tradition and how colonialism has affected those traditions. And it is means that you cannot go back to the past. Now this is a very important thing. You cannot go back to the past. There is no, because whenever you are imagining past, you are imagining a nationalist past. And this is the problem of, there we need decolonialism. Just listening to educated people, my observation is that we need to first really lay down the parameters of colonialism. Only then you can understand what needs to be decolonized. colonialism के हम जा रहे हैं उसकी कोई हम डेफिनेट उसको स्पेसिफिक्स में नहीं ले रहे, जनरलिटीज में जो आप समझते हैं colonialism, जो मैं समझता हूँ colonialism, there are good side, there are incidental results of colonialism which are good. There are incidental results of colonialism. जब underdeveloped people जो है developed लोगों को मिलते हैं तो उस डेवलपमेंट से उनके लिए कई लेसन्स भी होते हैं, अच्छे लेसन्स भी होते हैं. बट बेसिकली colonialism इज दैट ऑफ इंटेंट. जो कॉलोनाइजिंग पावर है उसका इंटेंट कॉलोनी बनाना है रादर देन डेवलपमेंट, तो उससे जाहिर होता है. तो अगर हम वो इंटेंट वाली चीजें जो है वो फिल्टर कर लें तो देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डीकोलोनाइजेशन. मेरे ख्याल में ये एक्सट्रीम है कि घर में डीकोलोनाइज करो, ये पहले कॉलोनाइजेशन को देखो फिर उसको डीकोलोनाइज करो सोसाइटी. Assalamu alaikum. My question was much similar to what you really asked, but I just want to add something to it. My question was, is decolonization really de-westernization? Okay, so people who have defined it, the four scholars हैं, Magnola भी मैं बता रही थी. Yes, particularly because he could see कि ये दो चीजें कंपेयर हम कर सकते हैं. So he has particularly said कि it's not de-westernization, it's beyond that. और हम जहाँ पे de-westernization में आमतौर पे जो सारी nationalist movement थी या right wing movement थी वो यही कर रही होती है, इसको de-westernization को वो आमतौर पे decolonization कहते हैं. But decoloniality goes much beyond that. It changes the terms and again it opens a lot of different possibilities. So it's not de-westernization at all, but it can be having a dialogue with the West on a different kind of relationship. Not elevating them, having a dialogue like they as if they have a different position, but having a dialogue and engagement at a very equal level, like respectfully giving respect to both rather than the top-down Western. So that changing that term of engagement is what decoloniality talks about. It's not anti-West at all. It's not de-westernization, and that's something जो decolonial scholars जो हैं वो खुद बड़ा clearly point out बताते हैं difference. So if you read it, you will know. Thank you so much. It was an extremely illuminating talk. And I really appreciate the university holding it. Now, my query relates to what Dr. Shoaib Saab in the book actually talks about, which is South Asia from the margins. So, given that you dealt with the security discourse, and my query relates to, and I'm really looking forward to the book, and it would be lovely to read it and perhaps write a review about it. So, from the margins, how is the security discourse different? And if it is so, how can we mainstream it? What is the kind of reformation? Maybe you can talk about some points. And from whatever you said yourself, sir, I think when we talk about these debates,
the more the merrier. Because what is the whole point of talking about these notions if we go into those framing and reframing of issues and otherism, because we've been talking about isms today too much. So I think the more the merrier, the happier the debate. हम तो कलम से ही कर सकते हैं. So आपने खुद ही कहा कि हमारा हथियार तो कलम ही है. So whosoever has this pen should have this debate, should have this open space to explore ideas, and then we will talk about it. So your comments. Thank you very much. I think the second सवाल था उसका आंसर मैं पहले देता हूँ. That's why we want to have that type of dialogue. I told Dr. Fatma Sajjad ke you are absolutely given the room, and I really want a real critique on the book. तो माशाल्लाह इन्होंने की और जो मेरी तरफ से भी इनको जवाब गजल के तौर पे मिला. So that what we want. एकेडेमिया में यही होना चाहिए. ये नहीं कि मैं आपकी तारीफ वो करूँ और माशाल्लाह the amount of notes जो इन्होंने बनाए हैं पूरा चीज पढ़ के she is so meticulous और इस वाले से ये थ्रो इन आवर डिपार्टमेंट माशाल्लाह. तो दैट्स रियली ग्रेट. तो अब आपका जो पहला सवाल है दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मेन स्ट्रीम सिक्योरिटी डिस्कोर्स हमारा है तो व्हाट इज द आंसर टू दैट. देखिए मेरा अपना जो ऑनेस्टली काम हुआ है स्ट्रेटेजिक कल्चर के ऊपर और सिक्योरिटी कम्युनिटी, मेरा काम सारा बड़े आसानी से डीकोलोनियल फ्रेमवर्क में फिट होता है. आई डोंट लाइक द लेबल, लेकिन मैंने जब सिक्योरिटी कम्युनिटी किताब लिखी वो सारी की सारी किताब एक डीकोलोनियल प्रैक्टिस के ऊपर कि हमारा एलीट ये जो फसाद की लड़त लेके बैठा हुआ है और हमें कहता है कि जी ईस्ट की साइड पे हमें ये हो जाएगा और इंडिया हमें खा जाएगा. तो आम बंदा क्या कहता है? आम बंदे के ऊपर मैंने प्रैक्टिसेस जब उसकी डीकोलोनियल प्रैक्टिसेस देखी तो वो पैदा होते ही पहले पाकिस्तान स्टेट्स की किताब पढ़ रहा है, उसमें इंडिया को गाली देनी स्टार्ट करता है और यूनिवर्सिटी तक जाता है. उसके सोशल फंक्शनों में मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो इंडिया के गानों के ऊपर नाचता है, उसकी मेहंदियां सेलिब्रेट होती. सिमिलरली जब मैंने सादत हसन मंटो के नावल पढ़े, इंतजार हुसैन के पढ़े, वापसी सिद्वा के पढ़े, जिसको ये हमारा एलीट उसको इनामात देता है. मंटो का मेला अभी तक मनाया जाता है. सारी उम्र बेचारा 42 साल की उम्र में बगैर पैसों के मर गया और उसके मेले के नाम पे हम अरबों रुपया बनाते हैं. वो अपने नावल में क्या लिखता है? वो नॉस्टैल्जिया की बात करता है, वो सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात करता है. तो मेरा तो सारा काम ही इस प्रैक्टिसेस के ऊपर है और मैं उसको लाइमलाइट पे लेके गया हूं बगैर अपने किसी ओहदे का या तमगे का फिक्र किए और अब तक कर रहा हूं. तो देखिए बात जो है आपकी कि सिक्योरिटी डिस्कोर्स में मार्जिनलाइज कैसे आएगा, वो इस तरह आएगा कि मैंने उससे कहा कि आप उसका स्ट्रेटेजिक कल्चर पढ़ें. आप जाके केपी में जाएं, बात करें तालिबान के साथ बैठ के कि यार तुम्हें तो पाला हमने, तुम क्यों हमारे पे गोली चलाते हैं. तो मेन स्ट्रीमिंग तब होती है, नैरेटिव में अकोमोडेशन मैक्सिमम तब होती है जब आप देखें हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 75 साल बाद आई. किसने बनाई है? जो एकेडमिक अमेरिका से इंपोर्ट किया गया. मैं आप सख्त बात करने लगा हूं इस वक्त. और वो जाके बनाता है पॉलिसी और उस सारी पॉलिसी को मैंने डीकंस्ट्रक्ट किया इसके अंदर. इट्स जस्ट द जगलरी ऑफ वर्ड्स एंड फ्लावरी लैंग्वेज. एक धेले की बात भी नहीं की उसने कि हमारे जो मार्जिन्स के ऊपर सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं उसको कैसे एड्रेस करना है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी. क्या ऐसे नैरेटिव बिल्डिंग होती? उसके लीवरेज ऑफ पावर है, उसके पास अमेरिकन नेशनैलिटी है तो वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. डीकोलोनियल प्रैक्टिस तो ये है कि हमारे एकेडमिक में तुम बात करो, उसको लाओ. वो मरा हुआ बैठा है साइड के ऊपर क्योंकि वो ना मेन स्ट्रीम की बात बोलता है, ना वो डीन है, ना डायरेक्टर है, ना रेक्टर है. तो भाई बात वो है जो सच पे लगे. हर चीज डिसमेंटल कर दे. बड़ी अच्छी बात की इन्होंने. रोड का प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है. जहां मियां मंशा का कोई स्कॉलरशिप है? कोई है स्कॉलरशिप? यहां पे भी तो स्टेट बैठे ना खरबपति. भाई फसाद में लर्स पे गाली दे देना. वेस्टर्न है जी, रैशनैलिटी है जी, इमानुअल कांट है जी, फलां है जी, कहाँ है जी. और यार छोड़ो, इतनी मोटी मोटी बातें बच्चों को हजम नहीं होती.
प्रैक्टिस की बात करो, प्रैक्टिस की बात करो। डीकोलोनियल हो ना तो आओ हमारे साथ बैठो, मस्जिद में बैठो, बना दिया तुम्हें, वहां पे जाके मसले हल करो, स्टूडेंट के सिर पे हाथ रखो, एपिस्टेमिक वायलेंस जीरो करो, मटेरियल वायलेंस जीरो करो, नॉलेज को साथ लेके चलो, पंचायत का माहौल देके आओ, मैं आपके साथ। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप डीकोलोनियलिटी की बात करते हो तो आप उसको एक रिडक्शन सेंस से नहीं देख सकते, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते, किसी और नेशनलिस्ट कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते, आपको साउथ एशियन एथोस पे आना पड़ेगा। तो ये जो नेशनलिज्म का चैलेंज फिर आपको फेस करना पड़ेगा, इसको कैसे डील करेंगे? काम भी है देखिए, नेशनलिज्म प्रॉबेबली मैं अगर उसको डीकोलोनियलिटी की नजर करूं तो जो भी अपने आप को, जो हमें कौम का पुराना लफ्ज था ना, तो सर सैयद साहब ने ना जो एक हमारे साथ एक बहुत बड़ा जिसको हम सी ऑफ मैन कहते हैं, मेरी उर्दू में जो है ना मतलब इसको मैं कैसे तर्जुमा करूं कि इस जुमले का कि जो हमारे साथ एक उन्होंने चिराकी की ना, तो ये क्या है कि उर्दू में कौम का जो नेशन का कोई तस्वर मौजूद नहीं था। तो जो हमारा दबिस्तान में उर्दू 1857 के बाद जो है बनना शुरू हुआ, तो उसमें उन्होंने कौम को और ब्रैकेट में बमानी नेशन लिखा होता है। तो सर सैयद को मेरे ख्याल में अब्दुल माजिद दरियाबादी का यकीन का मजमून है, उसमें वो लिखते हैं कि हमें सर सैयद को इसलिए सराहतों पे बैठाना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों को पहली बार कौम बमानी नेशन के तौर पर सामने लाया। ठीक है, तो भाई कौम हमारे, आप अगर अपने इंडिजिनस कल्चर्स में जाएं तो कौम क्या होती है? कौम आपकी कास्ट होती है, कौम आपका ट्राइब होता है, कौम आपकी कम्युनिटी होती है। ठीक है, आपने उसको थोड़ा एक टेरिटोरियलिस्ट नोशन ऑफ कौम पे जो कि वेस्टर्न था, आप वापस चले जाए कौम के तस्वुर पे, आपके मसले और नेशनलिज्म के मसले मेरे ख्याल में शायद ज्यादा बेहतर हल हो सकते हैं कि जो भी कहता है कि हम कौम है तो उसको मान लेंगे भैया आप कौम है। तो मेरा सर शुएब से थोड़ा सवाल भी है, कॉन्टेक्ट भी है कि सर ने कहा कि वेस्ट को हम क्रिटिक ना करें, वेस्ट के ऊपर ज़्यादा ना करें, बल्कि अपने आप को हम यूज़ करें। क्योंकि सर मेरा एक एग्जाम्पल सर मैं आपको सवाल शुरू करना चाहूँगा कि जिस तरह हम पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान के अंदर रहते एस्टेब्लिशमेंट क्रिटिक कर रहे हैं, जनरल क्रिटिक कर रहे हैं, तो क्यों उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं? कोई पावर उनके पास थी, उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया था कि अब हम नहीं हो सकते थे या हमें पता नहीं था कि हमें करना क्या है। इसी तरह अगर पिछले 100 साल से देखें तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल सिस्टम बनाया हुआ है जिसके थ्रू एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी है, आइडियोलॉजी भी है, जो कि वेस्ट ने हमें दी है। और क्योंकि पावर, मेरा बेसिकली पॉइंट ये कि पावर जब वेस्ट के पास थी 100 साल से, तो वेस्ट ही जिम्मेदार है अगर हम आपस में लड़ रहे हैं या हमारा एक, क्योंकि किसी इंसान को ले सकते हैं कि जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट अगर पॉलिटिकल पार्टीज का इस्तेमाल करती है आपस में लड़वाने में, इसी तरह तो जो BLA है या तो जो एक स्ट्रगल कर रहे हैं स्टेट के लिए, वो कौन सपोर्ट कर रहे हैं, या इजराइल पैलेस्टीन का जो इशू है या फिर बशर असद की वो जो मिली है उसके पीछे अगर देखें तो पावर बेसिकली वेस्ट के पास थी, तो वेस्ट ही मेरे ख्याल से इसका जिम्मेदार था। इसमें मैं थोड़ा सा सर को कहना चाहूँगा। क्योंकि मैंने एक बात की है, मैं आपकी बात में ऐड कर रही हूँ कि सिसिल रोड्स का आप कह रहे हैं बड़े इसमें प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को देता है, बड़ा अपने आप को पेट्रोनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं। सिसिल रोड्स हैज टेकन ऑल द, जिस तरह से साउथ अफ्रीका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ की डायमंड माइंस जो है वहाँ से लेके उसकी सारी जितनी एम्पायर बनी, जितनी पैसा उसने बनाया था, वो अफ्रीकन डायमंड माइंस से बनाया था। और वो सारी हिस्ट्री तो वो कहते हैं हम अपनी ये हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा, और जितना उन माइंस में जुल्म हो रहा था। So they don't need to give us scholarship, they just give us our money back, our diamonds back. हम खुद ही अपना ख्याल रख सकते हैं। We don't need their patronage, और we don't need, वो सिर्फ अपने आप को अच्छा रखने के लिए the money that they've taken us from us, और वो हमें वापस कर दे, we wouldn't need those scholarships. ओके, थैंक यू वेरी मच। वैसे तो असूली तौर पे आपने एस्टेब्लिशमेंट का सवाल किया, तो राइट साइड में एस्टेब्लिशमेंट हमारे कहते हैं, उसूली तौर पे एक अर्दली था, अर्दली, वो वजीर का अर्दली था। तो एक इलाके से कोई बंदा आया ना, वजीर ने ना अर्दली को झाड़ा छोड़ा। जब वजीर ने अर्दली को झाड़ा तो
अर्थ जी ने कहा कि जरा थोड़ा ध्यान करें, कल आप कोई और वजीर होगा, आप आए होंगे और आप मुझे कहेंगे कि इस तरह वजीर साहब ने मिला तो दो, तुम अब हाथ हौला रखो। अब अर्थ का ये हाल है, तो जो रिटायर्ड होता है वो वजीर से भी वर्ष होता है। वजीर तो फिर पॉलिटिक्स में आ जाता है, रिटायर्ड का तो कोई चांस नहीं। तो मैं किधर से एस्टैब्लिशमेंट हो गया, वेरी वीक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। सर थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल बेटा बेसिकली पावर का था, जो आपने कॉलोनियल मैट्रिक्स ऑफ पावर और बेटर ने रोल्स का जिक्र किया। तो एक देखें बात कॉलोनियल मैट्रिक्स ऑफ पावर की, हो सीएमपी जिसे कहा मनोरो साहब ने, या वैसे कॉलोनियल पावर आप समझे, बात पावर की प्रैक्टिस के साथ जुड़ी हुई। पावरफुल तो अल्लाह ताला भी है, समझ लेंगे। शेर के अलावा वो हर चीज को कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा। ये देखें कुरान सामने पड़ा, शेर को नजीम की बात की ना, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं, बाकी सब मैं छोड़। उसने भी पावर के साथ डेलीगेट नहीं किया, लेकिन साथ रहीम और रहमान को साथ जोड़ दिया। तो देखिए कॉलोनियलिज्म के साथ पावर आई है, कॉन्सेप्ट आई है। मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाह रहा, मैं तो आपको अपना काम भी बताया कि सारा डीकॉलोनियल काम ही है। स्ट्रेटेजिक कल्चर भी डीकॉलोनियल है, सिक्योरिटी कम्युनिटी भी डीकॉलोनियल है, सिक्योरिटी नैरेटिव भी डीकॉलोनियल है। लेकिन अगर आप हर चीज को ऐसे बुलडोज करते चले जाएंगे, जो अभी डिस्कोर्स के चल रहा है कि हर चीज की बेस्ट नजर आ गया, रैशनैलिटी नजर आ गई, इन्होंने एक डेफिनेशन में 4 लाइनें लिख दी, हम नहीं मानते, हम नहीं ना मान, अल्टरनेटिव दो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।